Hello everyone. In this session, we start our new question, that is the positive aspects of the PQLI, and then limitation, and then the new and the last indicator, that is the Human Development Index. And in the previous lecture, we already completed about the PQLI and then the three determinants of PQLI. That is the first one, education, and the second one, that is the life expectancy, and the third one, that is the infant mortality rate. And now we going for the our next question, that is the positive aspects of the PQLI. And in the last session, we already completed the important aspects, that is the PQLI is closer to 100. That's the performance of all the three determinants is good. And the next, that is the PQLI closer to 0, that is a bad performance. PQLI is always between 0 to 100. And then PQLI can be used to compare two states within the country or two different country. And the next, that is the higher PQLI is the PQLI more economic development, and if the lower PQLI, that is the lower development, है तो हम बोल सकते हैं कि lesser development. Now we start our new question, that is the positive aspects of the PQLI. And there are five positive aspects for the PQLI. And that's the first one, that is the PQLI includes factor like literacy and life expectancy which touch the standard of human life. यानी कि PQLI के अंदर जो एस्पेक्ट्स जो इंक्लूड हो रहे हैं, उनके अंदर अब बात करें तो अलग अलग थ्री डिटर्मिनेंट्स हैं. The first one, that is the education, the second one, that is the life expectancy, and the third one, that is the infant mortality rate. And here we conclude that the literacy and life expectancy, that is the health. तो यहाँ पे हमने जो दोनों फैक्टर लिए हैं, लिटरेसी, दैट इज़ द एजुकेशन, एंड द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो यहाँ पे दोनों जो फैक्टर की हम बात करें तो दोनों जो है किसको टच हो रहा है कि ह्यूमन लाइफ को, कि यहाँ पे हम जो भी फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, दे ऑल द फैक्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. The next one, that is the PQLI is a better index when compared to per capita income index. यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कैपिटा आएगा, पर कैपिटा इनकम. तो यहाँ पे हमें पता है कि सबसे बेहतर, अगर जो बेटर इंडेक्स से अभी तक की बात करें तो दैट इज़ द PQLI. द फर्स्ट इंडिकेटर, दैट इज़ द नेशनल इनकम. तो फर्स्ट जो इंडिकेटर्स था, यहाँ पे कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही है. लेकिन जब सेकंड यहाँ पे आ गया कि पर कैपिटा इनकम, तो दोनों में से बेस्ट कौन था, बेटर कौन, या तो सुपीरियर कौन था, दैट इज़ द पर कैपिटा इनकम. अभी तीसरा तो पिक्चर में आया ही नहीं है PQLI, लेकिन समझो कि अब PQLI भी आ गया, तो तीनों की कंपैरिजन में बेस्ट अब कौन सा होगा, PQLI. यानी कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की बात कर रहे हैं. एंड अभी तक चौथा पिक्चर में नहीं है, लेकिन जब चौथा आ जाएगा HDI, तो चारों की कंपैरिजन करेंगे हम, तो जो बेस्ट इंडिकेटर है दैट इज़ द HDI. तो यहाँ पे हम ध्यान रखें कि ये चारों की कंपैरिजन की बात करें तो ऑल दी फोर इंडिकेटर्स, दैट द बेस्ट इज द HDI. The third positive aspect is the PQLI as an indicator of economic development as a lesser drawbacks as against national income and PCI indicators. तो यहाँ पे सिंपल है कि जो भी PQLI के अंदर जो लिमिटेशन है वो कम है किसके सामने, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के सामने. यानी कि PQLI में जो लिमिटेशन है वो कम है कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम. इसीलिए पर कैपिटा इनकम इज़ अ बेटर इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू द पर कैपिटा इनकम. तो यहाँ पे तीन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमने देख ली. फर्स्ट वन, दैट इज़ द in PQLI includes the factor like literacy and life expectancy, which is the touch the standard of human life. The next one, that is the PQLI is a better, and the last third one, that is the PQLI is an indicator of economic development as a lesser drawbacks as against national income and per capita income.
यानी कि पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम में जो लिमिटेशन है उससे पीक्यूएलआई में कम लिमिटेशन है, इसलिए पीक्यूएलआई बेस्ट इंडेक्स है, या तो बेस्ट हम बोल सकते हैं कि इंडिकेटर है। द नेक्स्ट वन दैट इज द फोर्थ पॉजिटिव एक्सपेक्ट, the with PQLI comparison can be made between different countries, different groups of countries और different state of the same country। तो हमने आगे इम्पोर्टेंट में भी देखा था, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में फोर्थ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, एंड वही यहाँ पे फोर्थ है कि PQLI की हम बात करें तो PQLI में हम अलग अलग कंट्री की भी कंपैरिजन कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्री, या तो अलग अलग स्टेट्स की यानी कि राज्य की भी हम कंपेरिजन कर सकते हैं। The last one, that is the way we can create PQLI for urban, rural areas and females and males and comparison can be done। यानी कि PQLI हम जब भी रेडी करते क्रिएट करते हैं तो हम रूरल के लिए अलग एंड अर्बन के लिए अलग PQLI का इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। एंड समझो कि हम फीमेल्स एंड मेल्स के लिए भी अलग करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, और हम सब लोगों की कंपैरिजन भी कर सकते हैं। दैट्स द लास्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पाँचों पाँच एस्पेक्ट्स को। द फर्स्ट वन दैट इज़ द यहाँ पे हम लिटरेसी की बात करते हैं, एंड द सेकंड दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दोनों को कंक्लूड कर रहे हैं। दैट्स वाई द लिटरेसी एज वेल एज life expectancy both are touch the human life। the second that is the PQLI की हम बात करें तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर है कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम। द थर्ड वन दैट इज़ द जो इंडिकेटर की हम बात करें PQLI उसमें जो ड्रॉबैक्स या तो लिमिटेशन है वो क्या है, कम लिमिटेशन है एज अ कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। and the fourth that is the PQLI comparison can be made between different countries and the state of the same country। and last one that is the we can create PQLI for urban areas, rural areas and female and males and comparison can be done। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन था पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द PQLI, दिस द क्वेश्चन इज द कंप्लीट, एंड वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द limitation of the PQLI। and this question, this limitation of the PQLI is very most important for your board examination। we going for the limitation of PQLI। the first one that is the only three aspects are included on their basis, it cannot be categorically stated whether a country has actually developed or not। to get a correct picture we need to include other factors also to the existing ones। यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में अगर ये समझें तो हमें आगे देख लिया था कि PQLI के अंदर हम अलग अलग थ्री एस्पेक्ट्स को कंसिडर कर रहे थे, दैट इज़ द थ्री डिटर्मिनेंट्स, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो यहाँ पे हम जो तीन एक्सपेक्ट्स हैं उनके मुताबिक हमें ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी कंट्री डेवलप है या नहीं है, क्योंकि तीन जो इंडिकेटर्स है वो काफ़ी नहीं है पूरी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पिक्चर क्लियर करने के लिए। तो हम यहाँ पे करेक्ट पिक्चर हमें नहीं मिलेगा कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमें और भी यहाँ पे ज़्यादा एस्पेक्ट्स या तो ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा या तो ऐड करना पड़ेगा। फिर से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि PQLI में हम सिर्फ तीन ही एस्पेक्ट्स ले रहे हैं जो काफ़ी नहीं है, और भी एस्पेक्ट्स हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करने की, और भी डिटर्मिनेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करें तो हमारी कंट्री का पिक्चर क्लियर हो सकता है कि हमारा जो कंट्री है वो डेवलप है या तो नॉन डेवलप है। द नेक्स्ट दैट इज़ द ओनली एवरेजेस आर डिपिक्टेड। तो हमें पता है कि हमने जो फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI, you can see the question on the page number 22 in the mid, that is the formulation of PQLI, and we already completed the sum of the all three indices and divide by 3, that is the average, and the average is derived as identified as a PQLI। तो यहाँ पे हमें जो PQLI मिल रहा है वो क्या है, एवरेज है, कोई करेक्ट अमाउंट नहीं है, एवरेज ही हम निकालते हैं। द वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम थ्री इंडिकेटर्स आर डिवाइडेड बाई 3 टू ऑब्टेन PQLI विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एवरेज। तो यहाँ पे रिपीट ही हो रहा है कि जो PQLI में मिल रहा है वो तीनों हमारा इंडिकेटर्स है उनका एवरेज है। एवरेज ऑफ थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री डज नॉट शो द प्रोमिनेंस और बैकवर्डनेस ऑफ ईच इंडिकेटर्स।
यानी कि हमें यहाँ पे समझो कि अलग अलग ग्रेडेड दिए थे हमने तीनों इंडिकेटर्स को, तीनों का हमने टोटल किया डिवाइड बाई 3 एंड दैट्स द एवरेज, एंड द एवरेज डिनोमेट द PQLI। तो यहाँ पे PQLI समझो कि एवरेज जो है उनके मुताबिक हम ऐसा फाइंड नहीं कर सकेंगे कि कौन सा इंडिकेटर्स का परफॉर्मेंस बेस्ट है एंड किसका बेड परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये तो एवरेज है तीनों का, इसीलिए यहाँ पे कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं होगा। या तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा इंडिकेटर्स या तो कौन सा डिटर्मिनेंट्स का बेस्ट परफॉर्मेंस है हम डिसाइड नहीं कर सकते। डिसीजन कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, तो वही रिपीट हुआ कि एवरेज के बेसिस पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। द थर्ड वन दैट इज द इफ countries present PQI is high, it cannot be generalized that the economic development is high as against other countries। यानी कि अगर समझो कि PQLI ज़्यादा है, हाई है, तो उनके मुताबिक हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या तो कोई और कंट्री से ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल बोलूँ यहाँ पे, तो समझो कि PQLI इंडिया का ज़्यादा है और हम कंपेयर समझो कि कर रहे हैं चाइना के साथ, और चाइना का PQLI समझो कि लोअर है कंपेयर टू इंडिया, तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाइना से ज़्यादा होगा। उल्टा भी हो सकता है कि भले ही चाइना का PQLI डाउन हो, लेकिन चाइना का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो सकता है कंपेयर टू इंडिया इज़ द मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The next fourth, that is the it is not right to give equal weightage to all indicators, all three aspects do not have the same importance in human life। यानी कि हमने अलग अलग तीन इंडिकेटर्स दिखे थे और तीनों को हम 100 का वेटेज दे रहे हैं, यानी कि तीनों को हम इक्वल इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। तो हमें पता है कि तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं उनका इम्पोर्टेंस हमारी ह्यूमन लाइफ में अलग अलग है, तो हमें यहाँ पे इक्वल वेटेज नहीं देना चाहिए। कि समझो कि जिनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है हमारी ह्यूमन लाइफ में उनको हम ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं, जिनका कम है उनको हम कम वेटेज दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने तीनों को 100 100 100 यानी कि इक्वल दे दिया, तो ये भी गलत हुआ। कि बात करें एजुकेशन, तो एजुकेशन इज़ द मोर इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स फॉर ह्यूमन लाइफ, then we can give the most important in the compared to various indicators of the PQLI। तो हम यहाँ पे एजुकेशन को भी 100 दे रहे हैं, एंड देन लिटरेसी लेवल यानी कि एजुकेशन 100, देन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऑल्सो 100 एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो 100। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो एजुकेशन का है, तो एजुकेशन को हमें ज़्यादा यहाँ पे वेटेज देना चाहिए, लेकिन हमने तीनों को इक्वल दिया। दैट्स द लिमिटेशन ऑफ PQLI। And the next one, that is the growth of income is a high importance in physical quality of life index and ignoring that is not possible। तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रोथ ऑफ इनकम, कि हमारी इनकम में जो भी ग्रोथ आ रहा है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं कि PQLI में हमने कहीं पे भी इनकम की बात नहीं की है। दैट्स वाई द PQLI इज़ अ नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। And the last one, that is the HDI, is a non-economic as well as economic indicators of the PQLI, सॉरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि नेशनल इनकम इंडिकेटर, नेशनल इनकम है जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। सेकंड पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो इकोनॉमिक indicator। The third one, that is the PQLI, and the PQLI is a non-economic indicators। क्यों? क्योंकि PQLI में हम कहीं पे भी कोई इनकम की बात नहीं कर रहे, बल्कि नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम में हम इनकम को कंसिडर कर रहे थे, नेशनल इनकम को। एंड द जो फोर्थ आएगा वो HDI, देन द HDI कंसिडर द बोथ, दैट इज द इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक factor। That's why the HDI is the best indicators among the four uh, indicators of the economic डेवलपमेंट। तो हमें पता है कि जो सबसे बेस्ट सुपीरियर इंडिकेटर्स है वो कौन सा है, HDI। क्यों? क्योंकि HDI के अंदर हम
जो भी नॉन इकोनॉमिक एज वेल एज इकोनॉमिक दोनों फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं. The PQLI of rich country rise at a slower rate because average life cannot increase beyond the particular limit. तो हमें पता है कि जहाँ पे समझो कि एवरेज लाइफ की हम बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ऑलरेडी समझो कि 85 है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं कर सकते कि कोई भी ह्यूमन हो या तो कोई भी बंदा हो, हमें पता है कि मैक्सिमम 100 या तो 90, तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट नहीं कर पाएंगे. लेकिन जो कंट्री में 65 है एवरेज लाइफ, तो 65 से हम 20% इंक्रीज करके 85 पहुँच सकते हैं. लेकिन 85 को हम 105 नहीं ला सकते. इसीलिए जो रिच कंट्री है या तो जो डेवलप नेशन है, ऑलरेडी डेवलप, वहाँ पे स्लोवर रेट होगा, क्योंकि एवरेज लाइफ को हम एक लेवल से ज़्यादा हम इंक्रीज कर सकते नहीं है. एंड दैट्स वाई द PQLI ऑफ अ रिच कंट्री राइज एट अ स्लोअर रेट बिकॉज ऑफ द एवरेज लाइफ. Here we completed the all the six limitation of the PQLI, and now we going for the human development index. Before going to this question, you can see in page number 23 present scenario above the HDI present scenario. तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आफ्टर 2003 इंस्टीड ऑफ थ्री एस्पेक्ट्स, थ्री मोर एस्पेक्ट्स वेर इंक्लूडेड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड इन द वर्ल्ड. यानी कि 2003 उनके बाद हम बात करें तो और भी तीन एस्पेक्ट्स को हमने ऐड कर दिया, यानी आज 6 है करंट सिचुएशन में. लेकिन बिफोर 2003 वी हैव ओनली 3 इंडिकेटर्स, 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ PQLI. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि करंट सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है ऑफ द PQLI. तो हम बोल सकते हैं कि 3 indicators already new added in the PQLI. So in the recent situation, in the current scenario, 6 indicators of the PQLI. Now we going for the our next indicators, that is the Human Development Index, and the short form, that is the HDI. The most recent indicator development is the Human Development Index, and underlying United Nations Development Program, that's the UNDP, presented the Human Development Report, that is the HDR, in 1990. तो यहाँ पे एक MCQ या तो वन सेंटेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि HDI किसने प्रेजेंट किया था. तो हमें याद रखना है UNDP. And the next question, that is the in which year the HDR is presented, 1990. तो दो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं हमारे कि सबसे पहले जो प्रेजेंट किया ह्यूमन डेवलपमेंट का रिपोर्ट वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट्स UNDP, एंड कौन से ईयर पूछे तो 1990. In that report, Human Development Index was presented as a measurement of development. तो जब वो रिपोर्ट समझो कि प्रेजेंट हुआ, तो क्यों हुआ था, एज अ मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कि डेवलपमेंट कितना हुआ है या नहीं हुआ है. Along with economic aspects of measurement, HDI emphasize more on non-economic aspect too, and Indian economics too contributed in evolving the HDI on the basis of evaluation made regarding development and efforts in different countries. तो यहाँ पे सिंपल है कि हमने आगे के जो 3 इंडिकेटर्स देखे कि फर्स्ट वन दैट इज द नेशनल इनकम एंड सेकंड दैट इज द PCI, and both indicators consider the economic factor. The third one, that is the PQLI, and PQLI consider the non-economic factor, and the HDI is the one indicator that's contains that's consider both factor, that's the economic as well as non-economic factor, and that's why the HDI is the best indicators of the above 4 indicators. तो चारों की कंपैरिजन में बेस्ट इंडिकेटर्स कौन सा होगा, HDI, क्योंकि यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एज वेल एज इकोनॉमिक्स दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं. Improvement were introduced in the year 2010 in the minimum and maximum value, which were used in measure HDI since 1990. यानी कि जो फर्स्ट HDI reports that's presented in 1990, and in the 2010 introduced some improvement in the HDR report. तो फिर से यहाँ पे वन सेंटेंस में
कि HDR के रिपोर्ट के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ था, वो कौन से ईयर में, याद रखना है 2010। एंड आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, और यू कैन सी इन द पेज नंबर 23, एंड दैट्स द टुडे current lecture, positive aspects, limitation of the PQLI, present scenario, and then HDI. And in the HDI, the three most IMP one sentence question, that's the first HDR report in 1990 by UNDP, and improvement in HDR in 2010. And in the next session we going for the next question in the HDI, that's the determinants of human development index. And you can see on page number 24 the three different determinants of the HDI. There's first one, that is the life expectancy, knowledge, and good standard of living. And then we going for the important aspects, and then human development indicators for some countries of the world, and there's the HDR report 2015. तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में के लिए हम HDR का जो तीनों डिटर्मिनेंट्स के बारे में और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर के लिए हम इतना रख रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड।